Good afternoon, friends. Amongst us, we have Mr. Amarjit Chopra, a chartered accountant who is a former president of the Chartered Accountants Association. And when we talk of the association, I remember that association with Mr. Amarjit Chopra and mine got connected through a case. And they say that God has his own way of connecting with someone. And similarly, the connection of on these webinars started with the COVID-19 situation. So as they say, and I strongly believe that man proposes and God disposes. So same is the way of connecting with the human being. And human networking is an important facet in any professional. Human networking for the purposes of growth in the society. Human networking in helping to move forward. As they say, while we take this session, today's session will be on a different tangent. It will be more as an interactive session like an interview. And we can say that in any profession, it's more like a teamwork. And all we know that teamwork means together, everyone achieves more. And what are the key mantras for achieving more in life? How has been Mr. Chopra's success journey? What are the takeaways which he wants to share with us on this platform as to how one can create a mark? As they say, normally the profession is a jealous mistress and people don't share the success mantras. But if during this short discussion with him, if anybody can take takeaways from that, that will be an enriching for him or her, whosoever participates. And in a profession, it is oftenly said that nobody teaches you by picking up the pen and teaches you how to grow in the society. It is more by observation and absorption of the characteristics of any individual. Maybe it is in an office, maybe it is a webinar, maybe it is through reading. These all are the success mantras. Thank you, sir, for accepting our invite. Just check it out, sir. Your network bandwidth is showing low. Before we take questions forward, I would just like to ask. Then I will shift to the other yes, sir. device. Just give me 2 minutes. Yes, sir. Yes, sir. As we were discussing that every professional in his own way, maybe it is an advocacy, maybe it is chartered accountancy, maybe it is company secretary, maybe as a writer, maybe as an influencer. There are a lot of ways. And since we have been connected with Mr. Chopra, and I have also been connected with him on the LinkedIn platform also, he acts in his own way as an influencer. He motivates us to write better. He motivates us to speak better. He motivates us to make a name in the society. And his office of GSA has grown leaps and bounds. There are different ways in a profession to make one who feels that he's one amongst the equal. Despite that fact, that how do you create your own niche? How do you carry out the people within your office, outside the office, to move together and people awe you? These are all success mantras, good mantras in the life. We will take all these questions, and anybody who's wanting to ask questions from Mr. Chopra can just raise his hand or just put it in the chat box. Or those who are watching us live on the YouTube, they can also post the question we will ask Mr. Chopra. So first things first, we would like to ask your professional journey as a chartered accountant. What has changed from the earlier times to the recent times? What are the changes you feel the society has changed, especially in the field of chartered accountants? Number one, thank you, Vikasji, for this opportunity. And number two, one correction only for everyone, that our institute is not an association. We are a regulator in our own right. We were created by the Act of the Parliament in 1949, even before the Constitution of the country came into existence. I think that's very important to be understood. Because most of the people understand that Institute of Chartered Accountants comprises of an association. We are not association. We are the regulators of profession. And we have a right to
conduct the examination. We have a right to give the disciplinary proceedings to the members. We have a right to give them the membership. We have a right to give them the certificate of practice. Everything is within this act, so far as 1949 Act is concerned. Of course, there are few changes which are taking place in the recent times, so far as that part is concerned. Vikasji, so far as I'm concerned, I qualified in 1975. And I can tell you that the profession then and now is absolutely a changed face. जब हमने सीए किया था तो रूप ही कुछ उसका और था, स्वरूप कुछ और था. There were no accounting standards, there were no auditing standards at that particular point of time. And I jocularly say that probably that was one reason that I qualified as a chartered accountant, because one didn't have to read those accounting or auditing standards at that time. But in today's date, every child, every student has to go through plethora of accounting standards, guidance notes, auditing standards, Indian accounting standards, statements, etc., etc. I personally feel that this younger generation is far more intelligent than us. They are able to grasp the things far more quickly than us. It is a media. I think it's an you can say information explosion, and they have been able to grasp it. They have been able to actually take it in the stride so far as so much of explosion of information is concerned. My hats off to the present generation that they are able to qualify with this vast syllabus that we have got on our anvil. But at the same time, I would like to say that in our times, the professional opportunities were very small. Though the number was also small so far as the chartered accountants are concerned. My own membership number is only 16,984. I qualified in 1975. Institute came into existence in 1949. At that time, these are not qualified, but these were registered as chartered accountants, about 1,600 members, which means in the first 26 years, traveling from 49 to 75, we produced first 26 years, we have just created about 15,000 chartered accountants, which is unbelievable. And today, every year we create about 35,000 chartered, which is a very large number. Very. So and this journey has been very exciting. The journey has been a great learning, and it has been a very satisfying journey, if you really ask me from that. So before I take the second question, meanwhile you will have to again log in the bandwidth is again low. Bandwidth is low, sir. So just 1 minute. I think I will just log out, then come back to you. Just give me a minute. Yes, sir. Yes, sir. So as we were hearing from Justice Mr. Amarjit Chopra, to the effect that how there has been a transition within the profession, there have been challenges, and like in every profession, they say that number of professionals every year increase. But the another flip side is that the ratio between any professional and the amount of cases or amount of nature continues to remain the same. And I am reminded of the Darwin's theory, which said survival of the fittest. And of this webinar, I have always been discussing with Mr. Chopra off and on. He says that the key mantra to any profession is the hard work. And there's a common saying that hard work and success. Hard work is an essential feature because even in the dictionary, the word hard work comes prior in time to that of success. And Chopra ji, I would like to ask, with the effect of digitalization, what has been the change in the scenario of the chartered accountancy? I think he has not logged in so far. Meanwhile, if those who have not been connected with Mr. Chopra or the LinkedIn would
And if one sees Mr. Chopra's profile, you will find that he is not only a successful chartered accountant, but he's also successfully disseminating the knowledge amongst the people. He's also a person who writes the poetry at ease. He's a good photographer. So we can all say that he has so many talents which have been packed and from which one can always learn. And even yesterday on the Father's Day, he had posted one poem on the LinkedIn that was quite emotional, and it was always, one could resonate, one could always connect with that as to how well he has written with that. Like he was discussing that there is a regulatory, even under the advocacy, there is a Bar Council of India, the Advocates Act. It helps us for the checks and balances in the society as such. And with the flux of, after the COVID-19 especially situation, we have seen that there have been challenges, but the positive is that there have been webinars. Earlier, there were only seminars. And on the YouTube also, you can connect with different topics to connect and help knowledge and move forward with that. It helps you to polish all your things in the right way. And Mr. Chopra's YouTube sessions are also immense. I've seen his sessions with the likes of Mr. Girish Ahuja also, wherein the knowledge have been shared. Just hold on. Mr. Chopra has connected and he's just unmuting himself. We will ask him, like, this profession is tough, and as we were discussing prior to his relogging in, that the number of professionals have been increasing, the avenues have been increasing. Despite all this tough competition, how does one create the mark, especially like Mr. Chopra? Yes, sir. How can one create a mark within the society? What, according to you, if you have to give these success mantras, what is the way one can create a mark within the society, in the profession? And thereafter, or you can say it's like just like in a chicken and the egg, as to whether the success mantra would be first making a mark within the society and then professional, or if you grow within the profession, then you automatically your mark within the society is made up. Sir. Chopra ji. Because it's a very, very tough question. It's a very tough question. हाँ जी, मेरा क्या थोड़े थे भी कुछ problem है sir. I think there's some problem at your end also. Sir, I think थोड़े उठो आ रहे. You can connect through best ways. You can connect through the mobile. एक मिनट ठहरो. You can connect through the mobile. The last time. एक मिनट ठहरो. इंटरनेट की प्रॉब्लम. तो जो लिंक तो भेजा है उन्होंने कनेक्ट कर दो, ऑटोमेटिकली मोबाइल तो कनेक्ट हो जाएगा. मैं भेज देना दोनों. Kindly bear with us. There is some technical, the internet. As they say that you can control everything, but there are certain acts which are not within the control of anyone. And this technology, as they say that good servant, but it shouldn't become your master. So, yes. Now I'm audible? Yes, sir. Sunil Agarwal, Comedy Chopra. I'm audible yes. Now? Yes, sir.
Because so far as this question was concerned, it is probably one of the most difficult questions to be answered. There cannot be any, you can say, ready-made answer for any success mantra. Because success is something which has many, many factors. Number one, as a professional, you have to keep learning. I think one of the most important factors is that as a professional, you must keep learning. You must keep yourself updated every time. And the second thing that I would like to say is that people feel that probably ethical conduct is not important these days. But to my mind, ethics is probably one of the most important ingredients for the success. People should start having faith in you as an individual. I think that's very important. Most of the time we feel that if the client feels comfortable with us, then probably he will keep repeating. Then he will find something far more comfortable. I think at times you have to be asking some unpleasant questions to your client. You have to be his guide. You have to be his friend. You have to be his philosopher. Every time you cannot say yes to him. There's no way that it is going to happen. And chartered accountancy profession is one, unfortunately. You see, it is differently placed compared to the advocates profession, which we must all accept. Because in the case of the advocates, you defend a client. You work for a client. And here as a chartered accountant, when I audit the accounts, I'm not working for the client. I may be paid by the client, but I'm working for the various stakeholders' interests. I think that distinction one has to make. And ultimately, if the regulators have faith in you, if your client has faith in your abilities and your guidance, and you are actually full of determination, you have a lot of perseverance, you are updated in your particular subject, and you are ethical. I think that's very, very important at the end of the day, come what may. You see, there have been certain practices going on in the various departments. Today, those practices are coming to an end. And with that, probably the revenue receipts of some of the professionals would also suffer. So I personally feel that ethical practices I have got certain clients with me today who feel that I am tough, and I have got the audits only because of that. Particularly when it comes to the internal audits, people prefer internal auditors who can guide you better, who can be tougher with the staff, and who do not leak out the information of the client to anyone else. So I personally feel that अगर मैं ये बोलूं कि जी कोई रेडीमेड मंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है. स्ट्रगल करनी पड़ती है, हर प्रोफेशनल को स्ट्रगल करनी पड़ती है. हमने भी स्ट्रगल किया, सबने स्ट्रगल किया है. मैं पहली गाड़ी जो मैंने ली, कार ली, सेकंड हैंड थी, एम्बेसडर, वो 11 साल बाद ली थी प्रैक्टिस के. मैं नहीं चाहता कि आज का बच्चा 11 साल बाद ले कार को. मैं ये कहता हूँ वो उसी साल में ले ले. परंतु कहीं ना कहीं पेशेंस और स्टेबिलिटी की बहुत जरूरी है. और दूसरी जो एक चीज जो मूल मंत्र मैं समझता हूँ, ग्रोथ के लिए अगर आप ये चाहते हो कि आपने एक ऐसी फर्म बनानी है जिसमें कि डिफरेंट काम आप कर सकें, तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी जिसमें लोग डिफरेंट एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन कर सकें. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जहां पर भी पहुंचा हूं वहां पे इसीलिए पहुंचा कि मेरे पार्टनर्स थे और पार्टनर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. और ये किसी को नहीं मालूम होता कि कौन किसकी किस्मत का खाता. लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट. मैं ये समझूं कि ये जो एक बैग उठा के चला और इसने जाके कहीं पे कॉफी हाउस में बैठ के कॉफी पी ली, तो पता नहीं इसने क्या कर लिया ना. यू डोंट नो. Probably his one meeting with a particular client could bring you the work for the entire year. So you have to have a blind faith in your partners. I think that's very important. And you should try as much as possible. हालांकि 100% संभव नहीं है. You should try as much as possible कि आपकी फर्म की कंटिन्यूटी रहे, उसमें पार्टनर्स की कंटिन्यूटी रहे, उसमें एम्प्लॉइज की कंटिन्यूटी रहे, जितना आप कर सकते हैं. बेसिकली I think that's very important. That's what I will like to say. Yes, Vikas ji. Will not be a straitjacket formula. Like you have rightly said that
interpersonal skills. आपकी आवाज भी बहुत टूट रही है. So I am also saying we are suffering on the same platform of the low bandwidth. Now, Yeah. अभी आपका कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा मुझे. मैं ये करता हूँ, मैं अपना फोन भी ऑन कर लेता हूँ, आपकी कम से कम आवाज मुझे सुनती रहेगी. yes. आपको फोन करके मैं फोन ऑन कर लेता हूँ, आपकी आवाज मुझे आती रहेगी. So what? हाँ जी. So what interpersonal skills you feel that have are changed what you joined to profession right now? See, जहां तक सवाल इंटरपर्सनल स्किल्स का है विकास जी, ये बहुत जरूरी है कि एक तो आपकी जो बिहेवियर है दूसरे व्यक्ति के प्रति, जब मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ पर्सनल रिलेशंस की, विद इन द स्टाफ, विद इन द पार्टनर्स, विद इन द विद द क्लाइंट्स एक्सेट्रा, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप हम्बल नहीं हैं, आप एरोगेंट हैं, तो मेरे ख्याल में लोग आपके पास ज्यादा जुड़ते नहीं हैं. You have to feel the pinch which somebody feels at given point of time. लाइफ है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक जर्नी है, जहां पे आपसे गलतियां भी होंगी, लोग कहीं ना कहीं पे पिंच होगा भी, कभी कभार तो पिंच होगा ही, इसमें भी कोई शक नहीं. कभी कभार आपको कड़वा बोलना भी पड़ता, स्टाफ के साथ भी कड़वा बोलना पड़ता. you have to be a hard task master, but at the same time, मुझे अभी तक याद है एक सीएमडी थे किसी बैंक के, उनको मैं मिलने गया और उनसे मैंने पूछा कि जी हाउ डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर प्लेस, तो उन्होंने बाकी सब चीजें बताई. कहने लगे यार मेरी लाइफ में एक प्रिंसिपल मैंने बनाया है कि जब मैं किसी व्यक्ति को ट्रांसफर करता हूँ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, और वो व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो मैं उससे ये नहीं पूछता पहले एक बार में कि काम कैसा चल रहा है, मैं उससे आते ही ये पूछता हूँ कि भी तुमने मकान ले लिया, तुम्हारी वाइफ आ गई, तुम्हारे बच्चे आ गए, बच्चों की एडमिशन हो गई नहीं हुई. क्योंकि वो उनका ये मानना था कि अगर मैंने, वो बेचारा पहले ही ट्रांसफर होके आया, बाकी बहुत सारी समस्याओं के साथ जूझ रहा, और मैं आते ही ये पूछना शुरू कर दूं भाई आपका काम कैसा चल रहा है, तो उसको क्या लगेगा. तो उनका ये मानना था कि ये बहुत जरूरी है जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें कि आप दूसरे के दुख दर्द में साझी हो, और आप उसकी फीलिंग्स को समझें, आप उसकी भावनाओं को समझें, आप उसके हर्ट को समझें. तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप त्योहार भी इकट्ठा मनाएं, आप गम भी कभी कभार इकट्ठा शेयर करें, इसमें भी कोई शक नहीं. हमने अपने ऑफिस में एक रिचुअल बनाया हुआ था, पिछले 2 साल से वो कोविड के चक्कर में नहीं हो रहा. हम पिछले 32-33 साल से लगातार पूरे स्टाफ के साथ वी हैव बीन गोइंग टू वैष्णो देवी वंस इन एन ईयर. वो जो हम 4 दिन इकट्ठे रहते हैं, those are probably the best days of the entire year. हम इकट्ठा गाते हैं, इकट्ठा बजाते हैं, इकट्ठा एंटरटेनमेंट करते हैं, इकट्ठा रिलीजियस फीलिंग लाते हैं. एवरीथिंग वी डू टुगेदर, आई थिंक इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो हम उस पर्टिकुलर चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं. क्वेश्चन वुड बी, यहाँ आपके आर्टिकलशिप्स हैं, वकालत में इंटर्नशिप शुरू हो गई हैं. हाँ जी. What is the relevance of the internships or articleships, whether they actually help a person to grow in the profession? Very frankly, विकास जी, ये एक ऐसा एरिया है जो स्टूडेंट रियलाइज ही नहीं कर रहा आज की डेट में कि वो क्या गेन कर रहा या लूज कर रहा. अगर मेरा अपना मानना ये जो 3 साल की ट्रेनिंग है, यही डिफरेंशिएट करती है हमारे को बाकी प्रोफेशन से. बच्चे को जब हम क्लाइंट के भेजते हैं और ये बता के भेजते हैं कि भी क्या करना है, उसके साथ कोई सीनियर भी लगाते हैं, जब वो किसी व्यक्ति के साथ जाके डील करता, अपने से सीनियर के साथ डील करता,
किसी जीएम के साथ डील करता है, किसी सीएफओ के साथ डील करता है, किसी एमडी के साथ डील करता है, उनसे डिस्कस करता है, उसका जो एक तजुर्बा है उसकी कोई कीमत नहीं है। वेरी फ्रेंकली इट इज बीइंग मिस। ये बच्चे आज मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई हमसे काम लिया जाता है, उनसे काम नहीं लिया जाता। उनको एक ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है, एक ऐसा तजुर्बा दिया जा रहा है जो शायद किसी भी अमाउंट में मिल नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ हमने भी ट्रेनिंग की, हमने एंजॉय भी बहुत किया ट्रेनिंग में। ऐसा नहीं कि हमने शरारत नहीं की होगी ट्रेनिंग में, पर हमने ट्रेनिंग में सीखा बहुत। लोगों के साथ डील कैसे करना है। अकाउंट्स की किताब होती क्या है। ऐसे जब मैं बीकॉम करके जाता हूँ, बाहर निकलता हूँ, तो मुझे पता नहीं होता कि डेबिट कौन सी और क्रेडिट साइड कौन सी है डे बुक की। वेरी फ्रेंकली ये बहुत जरूरी है। और फिर अगर मैंने कोई चीज प्रैक्टिकली हैंडल की हुई है, उस पर अगर क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसको मैं जिस तरीके से आंसर करता हूँ या जिस तरीके से टैकल करता हूँ, ये बिल्कुल अलग है। और अगर मुझे इंडस्ट्री में जाना है, सपोज कीजिए, और मैंने डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल किया है, जब मैं इंटरव्यू में जाता हूँ, इंटरव्यू को फेस करता हूँ, अगर मैंने क्लाइंट को अच्छी तरीके से फेस किया, क्लाइंट के सीएफओ को अच्छी तरीके से फेस किया, जीएम को अच्छे तरीके से फेस किया, रिपोर्ट मैंने डिस्कस की हुई है, तो मैं इंटरव्यूअर से घबराता नहीं हूँ। आई थिंक बच्चे को ये समझना पड़ेगा। क्लासेस आर इम्पोर्टेंट। आजकल बच्चे क्लासेस के प्रति बहुत ज्यादा रुझान है। मैं क्लासेस की इंपॉर्टेंस को कहीं पर डिनाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे का पहला एम ये भी है कि मुझे पास होना। परंतु पास होने के साथ साथ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको मुझे अंडरमाइन नहीं करना किसी भी सर्कमस्टांसेस में। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Next question would be, people like to ask whether one should start his own practice, join some firm or some company as an employee. What is the difference between them and how are the different ways to make their own mark? No. विकास जी, ये सब डिपेंड करेगा इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर और इंडिविजुअल पोजीशंस के ऊपर, इंडिविजुअल कंडीशंस के ऊपर। जब हमने सीए क्वालिफाई किया था तो 90% बच्चा प्रैक्टिस में आता था, 10% बच्चा इंडस्ट्री में जाता था। आज की डेट में एक टाइम पे तो ये हो गया था कि 95% बच्चा जो इंडस्ट्री में जा रहा था और 5% सिर्फ प्रैक्टिस में आ रहा था। आज शायद ये घूम के 80-85% बच्चा जॉब में जा रहा है, बाकी 20% बच्चा शायद प्रैक्टिस में आ रहा है, या 15% बच्चा प्रैक्टिस में आ रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि जब हमने क्वालिफाई किया था उस वक्त इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ना तो बैंक्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, ना इंश्योरेंस कंपनीज में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, ना कैपिटल मार्केट्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, ना स्टॉक एक्सचेंजेस में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी, ना कंपनीज में इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी। परंतु जैसे जैसे ये बढ़ा, जैसे जैसे हम आगे निकले हैं, अगर इकोनॉमी ग्रो करती है 7 से 8% के ऊपर, तो आपका सी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। हाँ, 7-8% से नीचे अगर ग्रो करेगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम आ सकती है। और आज बिग 4 के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो बच्चा बिग 4 में जाता है, आफ्टरऑल हर बिग 4 जो है हर साल आजकल 2-2,500 1,500 बच्चा पिकअप करती है। तो अगर मैं ये मानूं तो 10,000 बच्चे करीब तो बच्चा बिग 4 वाले पिकअप करके ले जाते हैं। ये अपॉर्चुनिटीज हमारे टाइम में बिल्कुल नहीं थी, आज की डेट में है। और दूसरी बात, बच्चे की कंडीशन पे क्या डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चे के घर में अगर साधन अवेलेबल है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कि वो 3 साल का जेस्टेशन पीरियड लगा ले, 4 साल का जेस्टेशन पीरियड लगा ले, और वो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है घर के अंदर, तो डेफिनेटली ही कैन कम इनटू प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस में सीधा नहीं है। ये मेरी एक बिल्कुल रिक्वेस्ट है हर बच्चे के साथ, पहले किसी सीनियर के साथ जाके 2-3 साल एज एन एम्प्लॉय काम करे। और एम्प्लॉय का काम करने का मतलब ये है कि वहां पे सीखे। क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग में होता हूँ तो एक सिर्फ आर्टिकल की तरह ट्रेनिंग लेता हूँ। जब सीए बन के जाता हूँ तो मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक आर्ट होता है फीस फिक्स करने का, एक आर्ट होता है फीस रिकवर करने का। ये आर्ट मुझे एज एन आर्टिकल समझ नहीं आता। ये आर्ट मुझे समझ आता है मैं जिस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के किसी के पास जाता हूँ।
और ये इसलिए भी जरूरी है कि आई विल लर्न एट द कॉस्ट ऑफ समवन एल्स, और मैं किसी और की कॉस्ट पे सीख रहा हूँ। इस पीरियड में मैं सीखता भी हूँ और अर्न भी करता हूँ। और आज की डेट में तो सैलरी स्ट्रक्चर्स आर नॉट बैड सो फार एज द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कंसर्न, विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द मेट्रोपॉलिटन एटलीस्ट, ये मैं बता सकता हूँ। तो मेरा अपना मानना यह है कि प्रैक्टिस सीधे शुरू नहीं करनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए पहले 2-3 साल का एक्सपीरियंस किसी फर्म के साथ लेना चाहिए, छोटी फर्म के साथ ले, बड़ी फर्म के साथ ले, वो मैं उस पर छोड़ूंगा बच्चे पे। और किस एरिया में ले जो उसका टेस्ट हो। जैसे मेरा एरिया ऑडिट का है, बेसिकली मेरे को ऑडिट में हमेशा शुरू से इंटरेस्ट रहा। लोग कहते हैं कि ऑडिट इज अ वेरी ड्राई फील्ड, मैं ये कहता हूँ कि ऑडिट से ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड ही कोई नहीं है। जिसने टैक्सेशन की प्रैक्टिस के लिए जाना है वो टैक्सेशन वाले के पास जाएगा, उससे जाके कुछ सीखेगा। जिसने जीएसटी के लिए जाना है वो जीएसटी वाले के पास जाएगा। जिसने फेमा के लिए जाना वो फेमा वाले के पास जाएगा। जिसने मनी लॉन्ड्रिंग वाले के लिए जाना वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले के पास जाएगा, बेनामी ट्रांजेक्शन वाले के पास जाएगा। तो ये सब चीजें अपनी कंडीशंस पे, अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। पर एक चीज और बच्चों से कहना चाहूंगा, अगर आपने प्रैक्टिस शुरू करनी है तो प्रोप्राइटरी से बेहतर होगा कि आप पार्टनरशिप के अंदर करें। और आपको अगर पार्टनरशिप में शुरू में फेथ नहीं तो शुरू में नेटवर्किंग कर लें, बाद में उसको पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर लें। इतना ही मैं अभी इस बात के ऊपर कहना चाहूंगा विकास जी। So like you said of audit, lot of people, though we were on sessions also. Lot of people, network ठीक हो गया मैं बंद। Lot of people are quite interested. What are the careers in the auditing as such? I have closed the mobile because the net has improved. देखिए, जब मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करता हूँ, हमारे टाइम पे सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट होता था और बैंक ब्रांच ऑडिट तो इक्का दुक्का किसी को मिल जाता था तो मिल जाता था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो एक रेवेन्यू ऑडिट आया बैंक के अंदर, फिर इंस्पेक्शन आई। अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑडिटर हो गया, वेरी फ्रेंकली। फोरेंसिक ऑडिट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंटायर फील्ड। आज पूरे बैंक्स में, जहां जिस कंट्री में 8 लाख करोड़ के एनपीएस हैं, 8 लाख करोड़ के हम राइट ऑफ कर चुके हैं, वहां पे तो फोरेंसिक ऑडिट की भरमार रहेगी। और फ्रॉड तो होते ही रहेंगे, किसी भी इकोनॉमी में फ्रॉड होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि फ्रॉड नहीं होंगे। फोरेंसिक ऑडिट हैज emerged as a very very important field if you really ask me. तो ऑडिट्स की अपनी नई नई ब्रांचेज आई है। बैंक्स ने अब एएसएम ऑडिट करवाने शुरू कर दिए, जिसको वो बड़े एडवांसेस देते हैं, उनकी आप मॉनिटरिंग करवा रहे हैं एडवांसेस की फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर। कॉन्करेंट ऑडिट हो रहे हैं बैंकों के। अब फीस का इशू हो सकता है, मैं ये अभी उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर बैंक में इनकी फीस ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक में इनकी फीस कम है, परंतु उनका आर्गुमेंट कुछ और है, हमारा आर्गुमेंट कुछ और है, तो वो आर्गुमेंट चलता रहेगा। परंतु आने वाले समय में एक बात पक्की है कि कॉन्करेंट ऑडिट की फीस इंप्रूव होगी। परंतु बैंक ब्रांच ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता था उसकी अहमियत कम होगी आने वाले सालों में। पर कॉन्करेंट ऑडिट और फोरेंसिक ऑडिट की जो फील्ड है, एएसएम की जो फील्ड है, वो बहुत बढ़ेगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपको ये भी बता सकता हूं कि आज की डेट में फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। मतलब कि द बैंक्स गिव इट फॉर द पर्पस ऑफ द स्टॉक ऑडिट, पर हम कितनी अच्छे से उसको करें ये उस पर मुनसर होगा कि ये अपॉइंटमेंट्स या अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यू करेंगी या नहीं करेंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है अपने आप में। और दूसरी बात आपको ये बता सकता हूँ कि जहां तक बाकी अपॉर्चुनिटीज का सवाल, हमने कभी रेरा सुनी थी? रेरा नहीं सुनी थी। आज रेरा के अंदर बड़ा अच्छा स्कोप है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। हमने कभी भी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड नहीं सुना था, उसके अंदर बड़ा अच्छा स्कोप चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। हमने कभी वैल्यूएशंस हम करते थे, परंतु आज की डेट में जिस तरीके से वैल्यूएशंस हो रही है, पर्टिकुलरली इंडिया होने के बाद, उसमें बड़ा जबरदस्त स्कोप है जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सवाल है। इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, कैपिटल मार्केट्स में, ब्रोकर्स के, स्टॉक ब्रोकर्स के पास every kind of an opportunity is available. GST has been the biggest reform post independence, if you ask me. GST में जिस तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अंदर गए हैं, GST it has been absolutely very a great opportunity which the chartered accountants have been able to explore and exploit for that matter. और उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि जब टैक्स ऑडिट आया, विकास जी आप इसको बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप एडवोकेट है,
जब टैक्स ऑडिट आया, टैक्स ऑडिट से पहले पूरी की पूरी प्रैक्टिस किसके पास थी टैक्सेशन की? इट वाज विद द एडवोकेट्स, इट वाज नॉट विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट दैट टाइम, पर्टिकुलरली इन द मुफस्सिल टर्म्स। टैक्स ऑडिट के आने के बाद जो टैक्स की प्रैक्टिस है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट शिफ्टेड टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर दैट मैटर। सिमिलरली जीएसटी, हम लोग सेल टैक्स नहीं करते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल टैक्स नहीं करते थे, वैट आया तो वैट करना शुरू कर दिया, पर जीएसटी सबके लिए नहीं आता, एडवोकेट्स के लिए भी नहीं आता, मेरे लिए भी नहीं आता। इसकी प्रैक्टिस सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आज के डेट में कर रहे हैं। तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज आर गलोर। अपॉर्चुनिटीज तो आप कितनी भी देख लें, किसी भी एरिया में देख लें। फैमा किसी ने सोचा था that it will become a very important source of practice. किसी ने सोचा था कि mergers and acquisitions के अंदर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। किसी ने सोचा था कि ड्यू डिलिजेंसेस इतनी ज्यादा होंगी जो आज की डेट में हो रही है। ये सब के सब एरियाज आर एब्सोल्युटली न्यू एरिया। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कितनी अच्छी प्रैक्टिस कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कर रहे हैं। आई कांट इवन टेल यू, ब्लैक मनी एक्ट के अंदर कर रहे हैं, आपके बाकी जो डिफरेंट एक्ट्स हैं बेनामी ट्रांजैक्शन के अंदर कर रहे हैं। तो जिसने जो एरिया पकड़ लिया, स्पेशलाइज कर लिया, अब तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कस्टम ड्यूटीज में भी जाना शुरू हो गया। तो जो व्यक्ति जहां पे जाना शुरू हो गया वहां पे वो प्रैक्टिस कर रहा और ठीक कर रहा। पर इसमें जरूरी यही है कि आप स्पेशलाइज करें किसी ना किसी एरिया में। So you have actually hit the nail on its head, and as I earlier said, that even in the dictionary they say that the hard work comes prior to success, and success, they say, also contains you. So it is you who actually works upon you. Though nobody can rule out the destiny part, it has its own role and charm. Like we connected with each other, no professional relationship, but relationships on a different page. And with that, we have grown in a different way, though we are waiting to meet each other. Now, the next question, what normally arises is like what you have said. A lot of people, as the economy is booming in its different way, a lot of people have started involving themselves in chartered accountancy. For my friends I have seen, they have started taking into insurance part. They've also started advising into the mutual funds. These are the new challenges. You feel that the advice taken from a chartered accountant or any other person has its own variations. What could be the chartered accountant's way of guiding, which actually helps us to do much better financial planning in that way? Maybe it's for the tax savings. मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा विकास जी, कि जहां तक फाइनेंशियल प्लानिंग का सवाल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डेफिनेटली वेल equipped to give that particular advice. But that comes after a particular experience. अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करते ही मैं ये फाइनेंशियल प्लानिंग की एडवाइस देना शुरू कर दूंगा, तो मेरे ख्याल में it could be suicidal both for the client as well as for the चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा अपना मानना यही है कि अगर आप वाकई में फाइनेंशियल प्लानिंग साइड में जाना चाहते हैं तो किसी ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जाके पहले जुड़ें जिसके पास उस तरीके का काम हो, जिसके पास इंश्योरेंस की एडवाइजरी हो, म्यूचुअल फंड की एडवाइजरी हो। अगर आप वो करते हैं, वो एक्सपीरियंस लेके आते हैं और उसके बाद करते हैं, तो यू विल बी एब्सोल्युटली सक्सेसफुल सो फार एज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कंसर्न। आई थिंक मनीष चौहान जी ने हैंड रेस कर रखा था काफी देर से और उन्होंने डाउन कर लिया, परंतु आप उनसे I will see. Mr. Chauhan को कर दो, मनीष चौहान। Meanwhile, Nitin has asked, I wanted to know, is law and CFA a good combination? What prospects can a lawyer have in the private equity managements like the AMCs? मेरे हिसाब से लॉ का कॉम्बिनेशन तो किसी के साथ भी चला जाता है, और लॉ और FCA बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट GM फाइनेंस CFO तक रह जाते थे, मैनेजमेंट करने के बाद नाउ दे आर गेटिंग अप टू द CEO लेवल आल्सो। आई थिंक ये कॉम्बिनेशंस अपने अपने टेस्ट पे डिपेंड करेगा। लॉ और CFA का कॉम्बिनेशन अच्छा है, परंतु लॉ अपने आप में भी कंप्लीट है, ऐसा नहीं है। पर लॉ के अंदर इतनी और फील्ड्स हैं कि आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। मेरे ख्याल में you know it better than me so far as the field of law is concerned. So Manik has posted the question. He has not unmuted himself. I want to start my own practice from articleship period until date of my professional job experience in Big Four.
I've always been engaged in big clients for works like Ind IAS conversions, IPOs, gap conversions, audit and tax audits of large listed entities, consolidation, etc. Is there any scope for such works for my personal practice? I really like the work which I did in my job, but want to do it in my practice. Can't do a job. I think very valid question from Manik, if you really ask me. अगर उनका इंटरेस्ट प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस में आना चाहिए. उसका ये भी हो सकता है कि ऐसी फर्म के साथ जुड़ जाए शुरू में जिनके पास इस तरीके का काम हो और इसको और सीखें. बेसिकली कन्वर्जेंस जो है, कन्वर्जेंस तो एक बार जो होनी थी वो हो गई मोर और लेस. अब जो नई कंपनी आएंगी उनका बहुत ज्यादा नंबर नहीं होगा. हाँ, बैंकिंग सेक्टर में अभी कन्वर्जेंस होना है, इंश्योरेंस सेक्टर में अभी कन्वर्जेंस होना है, परंतु ये क्लाइंट्स जो हैं छोटी फर्म्स को मिलेंगे मुझे नहीं लगता, वेरी फ्रेंकली. सो व्हाई नॉट टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए कंपनी और ए फर्म जिसमें ये काम मिलने की संभावना ज्यादा हो. मैं बिग 4 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी मिड स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिशनर्स के लिए भी बोल रहा हूँ. आप जॉब नहीं करें, आप पार्टनर बने कहीं पे जाके, अगर आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है. परंतु मेरा अपना मानना यह है कि आप 5 साल तक किसी के पास, 3 साल तक किसी के पास जाके फिर जब बाहर निकलेंगे तो आप एक रिफाइंड डायमंड होंगे बेसिकली, जिसको किसी ने और मतलब कि उसको ज्यादा हीरे की तरह चमका दिया हो. आप, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा मनीष जी के, आपने हर तरीके का एक्सपीरियंस लिया, बड़े क्लाइंट्स को हैंडल किया. बिल्कुल एज एन आर्टिकल आपने हैंडल किया. जब आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैंडल करने जाएंगे, क्योंकि जब आप एज एन आर्टिकल करते हैं तो साइन आपने नहीं करने होते, साइन किसी और ने करने होते हैं. जब आपने साइन खुद करने हैं, उस वक्त मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कैसे लेना है, उसको कितना एक्सेप्ट करना है, कितना एक्सेप्ट नहीं करना है, आपकी एसए 240 में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी बाकी स्टैंडर्ड्स में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उभर कर आपके पास तभी आएगी जब एज ए मेंबर आप कहीं पे काम करेंगे. तो मेरा अपना मानना है, आपकी बात सही है, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी चाहिए. आपका टेस्ट अगर प्रैक्टिस में, तो आपको प्रैक्टिस में ही जाना चाहिए किसी भी सूरत में. परंतु अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको वेट करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत. और एक बात और बता दूं कि कभी भी इस बात से मत हिचकिएगा, आप वर्क अगर आपका अपने क्लाइंट नहीं आ रहा है शुरू में, तो आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे काम करिए इन द बिगनिंग. हम सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं पे सब कॉन्ट्रैक्टिंग से ग्रो किए हैं. सच्ची बात यही है कि किसी ने काम लिया और हमने उसको काम करके दिया. वी अर्नड एंड वी लर्नड आल्सो एट द सेम टाइम. बेसिकली आप अगर किसी के पास जॉब नहीं करना चाहते हैं, बट यू वांट टू ओनली वर्क ऑन योर ओन, यू मे वर्क ऑन योर ओन विदाउट डाउट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आप अपने तरीके से काम करिए, पर आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर लीजिए. इस वक्त सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम बहुत ज्यादा हो रहा है इस प्रोफेशन के अंदर, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज काफी मिलेंगी, ये मैं बता सकता हूँ. The lesson learned, what you have told is that first you learn, and as I say, that first you learn, then remove the L, it automatically becomes earn. Yeah. So, yeah. So learning and earning, and they are always 3 mantras: learning, yearning, and earning. Yeah. They're all interwoven and intertwined with each other. One can always grow, one does. So before we part for the day and to connect for some other time, what you feel the scope within all professions is growing according to you, or because of the artificial intelligence, the scopes will dwindle, or people should be prepared, or what skills they have to improve within themselves with the coming of the artificial intelligence era? Best question for the day, if you ask me. अगर मैं They say keep the best reserved for the last day, last moment. अगर आप अकाउंटिंग की जॉब्स की बात कर रहे हैं, 90% जॉब्स अकाउंटिंग की खत्म हो जाएंगी, अकाउंटिंग. पर मैं एक बात और कहता हूं, ऑडिटिंग में भी काफी हद तक आपको जद्दोजहद जो आप मैनुअली करते थे वो कम हो जाएगी, टाइम आपका कम लगेगा, परंतु डेटा एनालिसिस आपका बहुत बढ़िया होगा. जब आप टूल्स यूज करेंगे ऑडिट के लिए, तो टूल्स हर तरीके की एक्सेप्शंस थ्रो आउट करेंगे. उन एक्सेप्शंस को स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, ये आपका काम होगा बेसिकली. आने वाले समय में
जो भी व्यक्ति आईटी के साथ कनेक्शन नहीं रख पाएगा, तो हमारा करिकुलम चेंज हो रहा है जिसमें सारे का सारा आईटी का ही युग शुरू हो जाएगा बेसिकली। जो व्यक्ति आईटी के साथ अपना कनेक्शन नहीं रखेगा, he will become irrelevant so far the profession is concerned. Let's be very clear about it. देखिए 2 साल पहले कोविड आया तो लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि रिमोट प्लेसेस पे जहां पे पहुंचना नहीं है वहां की ब्रांचेस को ऑडिट कैसे करें। ऑडिट मिला, परंतु करना बड़ा भारी समस्या था। लोगों ने हर तरीके के डिस्क्लेमर दिए, वो नहीं चलेगा। आपको रिमोट प्लेस, रिमोटली जो काम करने का आर्ट है वो सीखना पड़ेगा थ्रू दी आईटी। आज की डेट में आपके मोस्ट ऑफ दी बिग फोर और इवन द स्मॉल मीडियम प्रैक्टिशनर्स लाइक अस have started resorting to telling the people कि भाई आप घर से काम कर सकते हैं, जब तक आप डिलीवर कर रहे हैं पूरा काम कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे बैठ के करें या कहीं पे करें। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मेरा बेटा जो है he works for a company, he works more when he is at home rather than when he goes to the office। आपके 2 घंटे कम से कम कम्युनिकेशन के बचते हैं, 2 या 3 घंटे कम्युनिकेशन के बचते हैं। अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप ऑनलाइन तो सारा दिन ही है ना, और फिजिकल तो आप जितने बजे निकल गए उतने बजे निकल गए बेसिकली। तो आई थिंक ऑनलाइन हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो टूल्स यूज करने की आपकी कैपेसिटी है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे और डेटा एनालिटिक्स को नहीं समझेंगे, डेटा को एनालाइज कैसे करना है उसको नहीं समझेंगे, तो आई थिंक द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी बिगर। और दूसरी बात, आपने क्वेश्चन नहीं पूछा और मैं खुद ही उसका एक जवाब दे रहा हूं। हमारे यहाँ पे पिछले कुछ साल में there is a regulatory activism, rather hyperactivism of regulators, चाहे वो सेबी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो एमसीए हो, कोई भी हो। आज की डेट में रेगुलेटर कम चीज से शांत नहीं है। He wants more and more to be delivered। वो more and more deliver तभी होगा जब आप आईटी में एक्सपर्ट होंगे। आप हर चीज में मैनुअल नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। डाटा का पूरा विश्लेषण जो है, आज आप पूरी एआईआर देख लीजिए ना, आपकी जो एनुअल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो कहां से आ रही है? वो सरकार ने इकट्ठी की हुई है आपकी पूरी की पूरी। और अगर आप उस पर केयरफुल नहीं होंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? यू आर गोइंग टू मीट विद एन एक्सीडेंट। तो ये सारी चीजें जो हैं, आप अगर आईटी में नहीं घुसेंगे, अगर आईटी नहीं सीखेंगे, जो नए करिकुलम का पूरा मैं ये कह सकता हूँ एम्फेसिस ही आईटी के ऊपर है, लर्निंग के ऊपर है, तो अगर वो नहीं सीखेंगे तो यू आर गोइंग टू लैंड योरसेल्फ इन प्रॉब्लम। तो मेरा आपसे गुजारिश है हर बच्चे को, क्योंकि हमारी नॉलेज जहां तक आईटी की है, हम तो बेसिकली आज जैसे ये बैठ के ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, मेल देख ली, ये व्हाट्सएप पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, लिंक्डइन पे चले गए, ट्विटर पे चले गए, ये नहीं है। और फिर सिक्योरिटी सिस्टम्स का ऑडिट, आईटी सिस्टम्स का ऑडिट। आज आप आईएफसीआर के ऊपर रिपोर्ट देते हैं ना, आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल रिपोर्टिंग के ऊपर रिपोर्ट देते हैं, वो कैसे देंगे आप तब तक नहीं दे सकते जब तक आपको आईटी का पता नहीं है। आप उसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे? जो आपने 200-300 टेस्ट करने हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे, वो आप टेस्ट कैसे करेंगे अगर आपको आईटी की नॉलेज नहीं है? और अगर आप वो टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑडिट ही नहीं कर सकते हैं बेसिकली। तो मेरे अपने हिसाब से जो आपने विकास जी क्वेश्चन रेस किया है, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, किसी भी चीज की बात करें, आने वाले टाइम में तो रोबोट्स का टाइम है। रोबोट को आप फीड कर देंगे कि मुझे ये चाहिए, वो निकाल के देगा आपको। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। परंतु उसके बावजूद एक बात मैं कहता हूँ, जो ह्यूमन ब्रेन है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कितने भी रोबोट्स बना लीजिएगा, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं। मैं हमेशा अपने कॉन्फ्रेंसेस में बोलता हूँ कि जब हम अपनी नानी के पास बैठते थे या माँ के पास बैठते थे, वो 60 साल पहले की बात करती थी कि फलानी लेडी ने फलाने टाइम पे फलाना शगन दिया होगा, फलाने प्रोग्राम में फलानी चीज पहनी हुई थी। वो ह्यूमन ब्रेन है, वो कंप्यूटर नहीं पकड़ेगा। ये सब एनालिसिस जो है, एनालिसिस जो रियल सेंस में, एक जो रोबोट है वो तो ये कहते हैं भाई करंट रेशियो जो बड़ी इंप्रूव कर गई है,
और मैं कहूँगा करंट रेशियो इंप्रूव कर गई, 2 से 4 हो गई, परंतु करंट रेशियो इंप्रूव की क्यों? डेटर्स बढ़े, और डेटर्स बढ़े तो क्या ऐसा हुआ कि डेटर्स की पेमेंट नहीं आ रही, स्टॉक्स बढ़ गए तो ऐसा हुआ कि स्टॉक्स की सेल नहीं हो रही, इसलिए करंट रेशियो इंप्रूव कर गई। तो ये सब चीजें सिर्फ ह्यूमन ब्रेन ही कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल जो है ऑडिट के अंदर तो खत्म नहीं होगा किसी भी सूरत में, कंसल्टेंसी में खत्म नहीं होगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन में खत्म नहीं होगा, मनी लॉन्ड्रिंग में खत्म नहीं होगा, बेनामी ट्रांजैक्शन में खत्म नहीं होगा, जीएसटी में खत्म नहीं होगा। अकाउंटिंग जो है, जो सिर्फ अकाउंट राइटिंग करते थे, उसमें खत्म होगा, क्योंकि 90% जो है वो काम अपने हाथ से चला जाएगा। इसमें किसी तरीके का कोई संदेह मुझे तो नहीं है, क्योंकि the biggest sufferer has to be the accountants who are only accountants. I'm talking about it. क्योंकि मैं जिस वक्त सीए करनी शुरू की थी, मेरे ख्याल में जो भी मेरे सीनियर अगर जुड़ेंगे यूट्यूब में एक बात जरूर मानेंगे, हमारे टाइम में जब हम ऑफिस में पहुंचते थे, पहला काम जो दिया जाता था आर्टिकल को, ट्रायल बैलेंस का टैली करना दिया जाता था। अब कोई बंदा कोई ट्रायल बैलेंस की बात ही नहीं करता कहीं पे भी। Nobody talks about trial balance at all. और जितना छोटा डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में होता था उतना प्रॉब्लमेटिक होता था, जितना बड़ा होता था उतना इजीली डिटेक्ट हो जाता था। मजेदारी की बात ये, आज की डेट में कोई बात ही नहीं करता ट्रायल बैलेंस की, क्योंकि अकाउंटिंग इज ऑल गोइंग थ्रू दी आईटी, थ्रू सम अदर टूल्स बेसिकली। तो मेरे अपने हिसाब से आने वाले समय में जरूरत ये होगी कि अगर आईटी में कुछ ब्रीचेस हुई हैं, कंट्रोल्स में कुछ ब्रीचेस हुई हैं, सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ ब्रीचेस हुई हैं, हम उनको पकड़ेंगे कैसे? आई थिंक दैट हैज टू बी द रोल ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द पीरियड्स टू कम। सर जाते हुए मेरे को याद आ रही है, एक वो स्टोरी थी कि भाई देयर वर 2 पर्संस, एक एक्स से 5 पेड़ काटता था और एक 4 काटता था, और बाय द एंड ऑफ द डे जो 5 काटता था उसने काटी 30 और दूसरे ने काटी 35। तो उन्होंने उससे पूछा तुम दोनों में डिफरेंस क्या है? तू तो 4 काट रहा था और वो तुझसे कम काट रहा था। The difference concluded was he used to rest, get the axe sharpened up, and then used to cut the tree. And one who was keep on continuing the cut with the same tree, the axe got blunt. So the logic behind that profession is that until unless you don't sharpen your skills in the profession, you will be out and obsolete with the flux of time, and then God save you. So it was a nice interaction. We have learned a lot of things, though primarily on this platform we have chartered advocates as such, but the key mantras for all professionals continue to remain the same. That is the hard work, networking, team building, moving on to the society, paying back to the society. So thank you. It was a pleasure connecting with you on this platform. Everyone stay safe, stay blessed. Namaskar. Thanks a lot.